Hare Krishna, everyone. Uh, it's a day two of our 30 days summer course challenge, and in this video, we will discuss different approach of yesterday problem that is Tosham. Okay, so before moving towards, let's introduce myself. So yeah, this is Prahlad, and currently I'm a second year student at Government Engineering College Bilaspur. If I talk about my coding achievement, so yeah, I'm a 4-star on CodeShip, Papillon on Code Forces, and 1800 plus rated on Late Code. Yeah, that's all brief about me. Now just simply read today's problem, what it actually wants to say. Okay, it's to show me the N. Before discussing solution today's before discussing the solution of today's problem, I would like to inform you that it's a very popular problem, and there are so many problems are available on different platform similar to that. Like if you heard about threesome problem, okay, threesome it means other threesome, okay, threesome, okay. Okay, foursome, three closure sum, and pair sum. There are so many varieties are available of this problem. After solving this, you may can go and solve and approach these all kind of problems. And this problem is highly asked by different companies in their interview rounds. Okay, so now let's discuss the solution of this problem. Now just read it. Given an array of integer nums and integer target, return indices of two numbers such that if they add up to the target. Okay, you may assume that each input would have exactly one solution and you have to may not use same element twice. तो अरे बोल क्या रहा हमसे हमको एक array given है, we have to just find two elements in that particular array. That summation is equals to the target element. Target element here is 9. Just simply check in this array 2, 7, 11, 15. Is there any two elements exist that has sum equals to the target? Okay. Now just simply add 2 and 7. It is equals to 7 plus 2 is equals to 9. Yes, it is available. So we will just simply return the index of those particular element. Okay. Now let's move forward to towards the second example. Now just check it. 3, 2, 4. 3 plus 2 is equals to 6. Okay. Sorry guys. 3 plus 2 is equals to 4. Okay. It is not equals to 6. Okay. 3 plus 4 is equals to 7. It is not equals to 6. Okay, now just check for this. 4 plus 2 is equals to 6. Okay, so now just in output you will see we have returned 1, 2. It is the index of 2, 1 is the index of 2, and 4 is the index of, sorry, 2 is the index of 4. So I hope you all have understood this problem very easily. Okay, now just look to the constant. It is okay, it is in, okay. Now just read it. Can you solve with an algorithm that is less than O of n square? Okay. We will try to solve it in O of n square, and we will optimize it, solve it in n log n. Then we will try to solve it in n of n time complexity. Okay. So yeah, just think brute forcefully. Just think brute forcefully. What we can do here? Now simple approach comes in my mind. We will pick this element, and with respect to this element, we will take the sum of all elements. Like check with all elements, pick 2, then check with all elements. Like 2 plus 7 is equals to 9. Okay, it is 9. 2, it is 11 plus 2 is equals to 9. Not 11, 15 plus 2 is equals to 9. Not okay. Now just we will simply just uh, check each element with respect to the all over elements in that they are present in that particular array. Okay, and if the sum of those particular element is matched within target, then we will simply return the index of that particular element. Okay, so now let's see the what we can do here. Okay, then we will use a simple approach. यहाँ पे एक और चीज है, we can't pick one element twice. तो यार एक चीज हमेशा याद रखनी है कि दो एलिमेंट को दोबारा अपन को नहीं लेंगे, ठीक है? तो just without wasting our time, now just write the brute force solution. Okay, it is stored the size of our array. Okay, okay, okay. Now just traverse in our sorry guys. Okay, similarly for okay, now just take the sum and
सम इज इक्वल टू, ओके लॉन्ग में ले लेते हैं अगर आउट ऑफ रेंज गया तो। यार ओ सॉरी, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे। यहाँ पे सिंपली अपन क्या चेक कर लेंगे, अगर हमारा सम इक्वल्स टू टारगेट हो गया ना, इफ सम इक्वल्स टू टारगेट, यहाँ पे एक और चीज आपको लगानी पड़ेगी कि हमारा जो भी एलिमेंट है ना, हम उसको ट्वाइस नहीं ले सकते। तो एक कंडीशन और लगाई कि आई नॉट इक्वल्स टू जे, एंड आई नॉट इक्वल्स टू जे। ओके, सो या रिटर्न आई जे सिंपली। अगर हम सिंपली हमें अगर हमारे एलिमेंट्स उनका सम नहीं मिलता तो इन एट द एंड ऑफ द लूप वी विल सिंपली रिटर्न -1 -1। ओके, now just run it. Okay, I think it would be accepted. Okay, it's a brute force solution, so don't mind it. Now just approach it in better way. How we can optimize it? How we can optimize it in, like, is there we can use sorting? Okay, now just look forward to the sorting. Is we can use sorting. Now just in this test case, check. It is already sorted, but in this test case, it is not sorted. तो हम अगर इसको इनबिल्ट फंक्शन से सॉर्ट करेंगे तो यार यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। जस्ट इसको सॉर्टिंग करके क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, इतना सोचते हैं अपन पहले। ओके, अपन ये देखते हैं, हमारे पास ये एरे है। ओके, ये एरे है। अब इसको सॉर्ट करेंगे तो इट विल बिकम दिस। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, जस्ट सिंपली जस्ट सी हियर, दिस एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। यहाँ पे हमारा टारगेट कितना है, 9 है। हम 2 पॉइंटर लगाएंगे यहाँ पर, आई फ्रॉम बिगिनिंग एंड जे फ्रॉम एंड। ओके, हम चेक करेंगे इस 2 + 15 इज इक्वल्स टू 9। इट इज ग्रेटर देन 9, इट इज नॉट इक्वल्स टू 9, इट इज ग्रेटर देन 9। जस्ट सिंपली वी विल अपना j को पीछे लाएंगे। अब j को पीछे लाए तो कितना हो गया, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 2 + 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सॉरी सॉरी गाइस, इट इज 50। 2 + 11, 11 + 2 इज इक्वल्स टू 13। So it is greater than, it is greater than the target। 13 is greater than the target, then we will simply j माइनस माइनस, हमारा i अभी भी वहीं पे है, क्योंकि यार जब हमारा सम लेस देन होगा ना, then we will increase और i पॉइंटर, और जब सम लार्जेस्ट होगा टू द टारगेट, देन वी विल सिंपली मतलब हम अपने j को डिक्रीमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा j आ चुका है। 7 + 2 = 9, हमारा टारगेट हमें मिल चुका है। देन वी विल सिंपली रिटर्न दिस पॉइंटर 0 एंड 1। ओके, आंसर में हमारा 0 एंड 1 आ रहा था, इसमें आप देखेंगे। ओके, 0 एंड 1। ओके, तो ये हुआ। अब यार एक चीज आप देखिए, यहाँ पे हमारी एरे जो है ना, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है पहले से। हम अगर इसको सॉर्ट फंक्शन लगाते हैं, सॉर्ट करते हैं उससे, कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा के इनबिल्ट फंक्शन यूज करके, तो अब स्टार्टिंग में देखिए 3 0 इंडेक्स पे है, 2 1 इंडेक्स पे है, 4 2 इंडेक्स पे है। जब जैसे ही इसको सॉर्ट किया ना, तो 3 1 इंडेक्स पे पहुंच गया, 4 तो ठीक है 2 इंडेक्स पे, बट 2 हमारा जो था वो 1 इंडेक्स पे था, वो 0 इंडेक्स पे पहुंच जाएगा अगर सॉर्ट करेंगे इसको। तो यार कुछ हमको इस तरह सोचना होगा कि चलो सॉर्टिंग तो अपन कर लेंगे, बट कोई क्या ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या फिर ऐसा कोई चीज हम कर सकते हैं जिसमें हम हमारा जो भी वेरिएबल नम्स की वैल्यू है उसको हम सॉर्ट कर देंगे, बट उसकी इंडेक्स वैल्यू जो रहेगी उसके साथ, वो क्या करेंगे यहाँ पर, सेम रखेंगे जो पहले से थी उसकी। ठीक है, ये वाली इंडेक्स वैल्यू को यूज करेंगे। पर एक चीज रहती है यहाँ पर, पेयर, लाइक पेयर का यूज करेंगे अपन। पेयर पेयर में क्या होता है कि सिंटेक्स आप लोग क्या कर सकते हैं, एक डेटा टाइप, दो वैल्यूज को कोई भी एक साथ अपन स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन वैल्यू कर देंगे, वैल्यू वैल। ओके, वैल सिंपली अंडरस्टूड इट। एंड यहाँ पर अपन इंडेक्स कर देंगे। ओके, इस डेटा टाइप में अपन इंडेक्स स्टोर कर लेंगे, फिर इसको सॉर्ट कर लेंगे। देन हम जो भी अप्रोच अभी मैंने आपको बताई, 2 पॉइंटर लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। तो कैसे कर सकते हैं, देखो, नाउ जस्ट मेक अ वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट एंड ओके p, इसका नाम p दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना हम उसके इंडेक्स मतलब नंबर्स जो भी हमारे हैं उसकी इंडेक्स के साथ पर्टिकुलर हम रख लेंगे। ठीक है,
पी डॉट पुश बैक। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अपने जो भी हमारी नम्स ऑफ आई की वैल्यू है ना, उसको हम इसके साथ हमने मतलब रख लिया, ठीक है। अब अपन सॉर्टिंग परफॉर्म करवा सकते हैं। सॉरी, पेयर को सॉर्ट करेंगे। इसकी थोड़ी मैं साइज को इंक्रीज कर देता हूँ, जस्ट वेट एक मिनट। जस्ट वेट। ओके ओके, सॉर्ट कर लिया। अब हमारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए। अब हम वही अपना जो भी हमने अप्रोच आपको बताई थी उसी को अपन यूज करेंगे। ओके, आई क्या कर रहा था हमारा, जीरो पर पॉइंट स्टार्टिंग से पॉइंट कर रहा था, एंड हमारा जे क्या कर रहा था, लास्ट से पॉइंट करेगा। ओके, नाउ वी विल, और अपना लूप तब तक चलाएंगे जब तक कि जे हमारा ग्रेटर देन है आई। तो हम क्या कर लेंगे, सम निकालेंगे। देखो, एक चीज आपको देखनी, जो पेयर्स अपन ने बनाया है ना, पेयर्स की जो फर्स्ट वैल्यू अपन होगी वो होगी ये नंबर वैल्यू, मतलब जो भी नम्स की वैल्यूज है ना होगी। देन सेकंड वाली वैल्यू होगी वो होगी उसका इंडेक्स। ओके, तो सम निकाल लो तुम। क्या है, सिंपली चेक पी डॉट पी ऑफ आई डॉट सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, क्योंकि उसमें हमारी वैल्यू है, प्लस पी ऑफ जे डॉट फर्स्ट। ओके, this we will simply check if sum is equals to target हमारा हो गया, तो then we will simply return the our index। क्या करना है हमको, रिटर्न करना है हमको p ऑफ i, मतलब सेकेंड यहाँ पे करेंगे। देखिए, क्योंकि हमारे सेकेंड हमारी क्या है, उस पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स अपन स्टोर करके रखिए। ओके, एंड p j ऑफ सेकेंड। ठीक है, ये चीज हो गई। अब वही कंडीशन लगाएंगे अपन की, अगर हमारा सम, इफ सम ग्रेटर देन होता है हमारा किससे, टारगेट से, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, अपने जे को पीछे ले जाना। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारे आई को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, सॉरी, रन इट। सॉरी, यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। ओके ओके, ना इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सबमिट हो गया। ओके, इसमें आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, यहाँ पे देखिए हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम का सॉर्ट फंक्शन क्यों यूज किया, तो इसका क्या होता है, सॉरी, इसका टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ओ ऑफ एन, सॉरी ओ ऑफ लॉग एन लॉग एन, सॉरी गाइस, एन लॉग एन। ओके, एन लॉग एन में कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसको हम क्या और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। यार अपन ने क्या किया, ओके नाउ जस्ट कमेंट इट। अब हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकती है, यार हमने ओ ऑफ एन स्क्वायर में कर लिया, एन लॉग एन में कर लिया, देन यार हम एन में कर सकते हैं क्या इसको। अब एन में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, अब अपन करने वाले हैशिंग का यूज। हैशिंग कुछ नहीं होता, देखो हैश में क्या कर सकते, मैप में हम क्या क्या करते हैं, मैप का यूज करेंगे अपन इसमें। मैप में हम कोई भी वैल्यू को उसकी की वैल्यू के साथ स्टोर करते हैं। ठीक है, की वैल्यू जैसे कि मैप को आप ऐसा समझिए, हमें स्टूडेंट्स को क्या करना है, उसकी आईडीज के बेसिस पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम होगा ना उसकी वैल्यू, ठीक है, एंड उसकी की वैल्यू क्या होगी, उसकी आईडी। एक और चीज याद रखिए, स्टूडेंट का नेम हमेशा मतलब क्या हो सकता, सेम हो सकता है उस मैप पर्टिकुलर क्लास के अंदर, बट उस कॉलेज के अंदर, बट उसकी कॉलेज आईडी हर स्टूडेंट की डिफरेंट होगी। तो यार जो भी मैप की वैल्यू रहेगी ना वो डिफरेंट रहेगी। तो यार अभी हम क्या करने वाले हैं, जितने भी देखो हमारे नंबर्स है ना,
उनको हम उनकी की वैल्यू के साथ मतलब जो भी इंडेक्स वैल्यू है उसके साथ मैप कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, अपनी अप्रोच को लगाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे हैश मैप में अपन क्या करेंगे, मैप में अपन क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारे जैसे 2 को अपन किससे कर देंगे, 2 का इंडेक्स 0 है। ओके, 7 का इंडेक्स 7 को अपन 1 से कर देंगे। ओके, एंड 11 को अपन कर देंगे 2 से। देन 15 को अपन कर देंगे 4 से। ओके, अब सॉरी, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखिए, हम अपने मैप में ना, मैप में ट्रेवर्स करते जाएंगे, मैपिंग करते जाएंगे, एंड देन हम चेक करेंगे कि जो भी हमारा टारगेट से माइनस करके जो भी रिमेनिंग वैल्यू होगी ना, वो क्या इस मैप में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो मतलब हमें हमारा टारगेट इक्वल्स टू सम मिल जाएगा, मतलब उस इक्वल्स टू। ठीक है, अब मैप में यार देखो अपन चेक करेंगे ना, मैप में क्या होता है यार, लुकअप वाली जो चीज होती है ना वो ओ ऑफ 1 में हो जाती है, इसलिए अपन मैप को यूज करने वाले हैं। मतलब हमको अगर चेक करना है कोई एलिमेंट मैप में प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो ओ ऑफ 1 में हो जाती है, इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, मैप को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली इस अप्रोच को भी अपन लिखते हैं, मैप जस्ट इसका सिंटैक्स आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, दो इंटीजर टाइप डेटा टाइप है, क्योंकि एक होगा वैल्यू का, एक होगा इंडेक्स का। ठीक है, अब अपन सिंपली अपने लूप में चलते हैं, हर एक वैल्यू पे ट्रेवर्स करेंगे। देन वी विल सिंपली अपनी रिमेनिंग वैल्यू टारगेट से क्या करेंगे, नम्स ऑफ 1 को माइनस करके देखेंगे, जो भी रिमेनिंग वैल्यू होगी ना उसको चेक करेंगे क्या वो मैप में प्रेजेंट है। अगर वो मैप में प्रेजेंट है तब तो ठीक है यार, हमें सब मिल गया अपना। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो मतलब एट द एंड हमारा मतलब हमें मिलेगा ही नहीं, मतलब अगर मैप में प्रेजेंट नहीं होगी तो। ठीक है, इसका एक वेरिएबल में हम क्या करते हैं, रिमेनिंग वाली जो वैल्यू है ना उसको नम्स ऑफ आई जो है, ओके, टारगेट से माइनस नम्स ऑफ आई। ओके, इसमें हमारी रिमेनिंग वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मैप में फाइंड करेंगे। ओके, मैप डॉट फाइंड, इसका एक सिंटैक्स होता है रिमेनिंग वैल्यू अगर मिल गई ना, नॉट इक्वल्स टू मैप डॉट एंड, इसका मतलब ये है कि हमारे मतलब मैप में वो वैल्यू पर्टिकुलर प्रेजेंट है। अब इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा अपने इंडेक्स। तो इंडेक्स, अब इंडेक्स के लिए सोचिए आप, इंडेक्स कौन सा होगा, सबसे पहले तो यार जो आई है वो ये वाला, ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, नम्स ऑफ आई वाली। अब सेकंड जो मैप में रिमेनिंग वाला अपन ने स्टोर की होगी ना, उस चीज को, उसका अपन इंडेक्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो मैप ऑफ रिमेन एंड आई। ओके, एंड हम यहाँ पे मैप से अपनी नम्स ऑफ आई की वैल्यू को आई से मैप करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर एक बार और मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। कंपाइलर, सॉरी इसको कमेंट करना भूल गया। ओके, व्हाट आई हैव डन मिस्टेक, व्हाट मिस्टेक आई हैव डन हियर। ओ सॉरी, यहाँ पे अपन ने सिंटैक्सिकल मिस्टेक की है थोड़ी सी, रिमेन एंड -1। ठीक है, अब चल जाना चाहिए आई थिंक। ठीक है, इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। ओके, ये सबमिट हो गया। अब इसको एक बार समझ लीजिए आप, कैसे मैंने मैप में क्या किया। यार मैप है हमारे पास, ठीक है, मैप में क्या है, हमने यहाँ पे वैल्यूज बताएंगे, 2 को 0 से मतलब इंडेक्स वाइज उसके मतलब मैपिंग कर दी मैंने। अब हमने क्या किया, 2 के लिए चेक किया टारगेट क्या है। अभी हमारे मैप में एक भी वैल्यू नहीं थी। ठीक है, मैप हमारा एम्प्टी था, तो हमने क्या किया, मैप में जस्ट 9 - 2 = 7। अभी हमारे मैप एम्प्टी है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्या ये वैल्यू प्रेजेंट है मैप में, तो मैप एम्प्टी है, वैल्यू प्रेजेंट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ गए, मैप ऑफ 2 को मतलब क्या कर दिया, आई से 0 से पॉइंट कर दिया। देन हम क्या किया, 7 के लिए हमने चेक किया, 7 के लिए चेक किया, 9 - 7 = 2। अभी देखो मैप में हमने 2 को डाल चुके थे हम, तो मैप में 2 ऑलरेडी अवेलेबल है,
तो हम चेक करेंगे क्या 9 - 7 इज इक्वल टू 2, क्या 2 मैप में प्रेजेंट है, मैप में प्रेजेंट है, देन सिंपली हम क्या कर देंगे, उसकी इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। तो ये थी सिंपल सी अप्रोच, आई थिंक आपको समझ आया होगा। ओके, बाय बाय।